غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، آج شہید فلسطینیوں کی تعداد 56 ہو گئی۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے لاشیں گرنے کا وقت نہیں، خون بہہ رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ ایک دن میں 4 بچوں سمیت 15 فلسطینی بھوک کے باعث لقمہ اجل بنے۔ فلسطینی مندوب کا سلامتی کونسل سے دردناک سوال، کیا فلسطینی زندگیاں بچانے کے قابل نہیں؟ کیا غزہ میں منصوبہ بندی کر کے قحط پیدا کیا گیا؟ ہر طرف بھوک اور افلاس کے ڈیرے، سلامتی کونسل مسئلہ فلسطین کے حل میں اپنا کردار ادا کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل میں اظہار خیال، پاکستان کی زیر صدارت مسئلہ فلسطین پر مباحثے میں نائب وزیر اعظم نے کہا غزہ میں انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، غزہ میں انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی فوری ممکن بنائی جائے۔ پاکستان مسئلہ فلسطین کے لیے اصولی موقف اور یکجہتی کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان شام میں پائیدار استحکام کی حمایت کرتا ہے، ایران پر اسرائیلی جارحیت انتہائی باعث تشویش ہے۔ اور وزیر اعظم کا بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشنز تیز کرنے کا حکم، کہا شارائق اور اکرم سمیت دیگر راستوں پر بحالی کا کام مزید تیز کیا جائے، پھنسے ہوئے مسافروں کو رہائش، خوراک سمیت ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں، مانسون کے آنے والے اسپیلز کے لیے ادارے مل کر لائحہ عمل بنائیں۔ قاتلوں کی جانب سے دباؤ یا کچھ اور، بلوچستان میں قتل ہونے والی لڑکی کی والدہ نے بیٹی کا قتل جائز قرار دے دیا۔ مقتولہ کی ماں نے ویڈیو بیان میں کہا بانو کو بلوچ رسم و رواج کے مطابق سزا دی گئی۔ فیصلے میں سردار شیرباز ساتکزئی کا قصور نہیں، گرفتار کیے گئے افراد رہا کیے جائیں۔ پاکستان علماء کونسل نے مقتول خاتون کی والدہ کا بیان قرآن و سنت کے منافی قرار دے دیا، کہا اس طرح کا بیان ظاہر کرتا ہے کہ قتل میں والدین کی مرضی شامل تھی۔ چیئرمین حافظ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ خاتون کے والدین کو بھی اس قتل ناحق میں مجرم تصور کرنا ہوگا۔ شریعت کا حکم ہے ظلم میں کوئی قریبی عزیز بھی شامل ہو تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ذمہ داری ریاست کی ہے۔ والدہ کا بیان قانونی، سماجی، صحافی حلقوں نے بھی مسترد کر دیا۔ ملزموں کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ۔ ATC کوئٹہ نے نامزد ملزم سردار شیرباز ساتکزئی کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ ملزم کو ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ سوات کی تحصیل خواجہ خیلہ کے مدرسے کے تمام استاد گرفتار، مدرسے کے دوسرے بچوں پر بھی تشدد کے شواہد ملے ہیں۔ DPO سوات محمد عمر خان نے کہا فرحان کے قتل میں نامزد 4 میں سے 2 ملزم گرفتار ہیں، مرکزی ملزم محتمم اور بیٹا مفرور ہیں۔ مدرسے میں موجود 170 بچے والدین کے حوالے کر دیے۔ مدرسہ مخزن العلوم سے لاٹھیاں اور زنجیریں بھی ملی ہیں۔ مقتول فرحان کے دادا نے کہا بچے نے گھر میں جو باتیں بتائیں سب کے سامنے نہیں بتا سکتا، بچہ مدرسے میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ مقتول کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تشدد ثابت ہو گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں طوفانی بارش، لاہور میں مسلسل 2 گھنٹے برسات میں سڑکیں تالاب بن گئیں، متعدد گاڑیاں بند ہو گئیں، لوگوں کو پریشانی کا سامنا رہا۔ 100 ملی میٹر بارش کے چند گھنٹوں بعد شہر کی سڑکوں کو کلیئر کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی نگرانی میں گرینڈ آپریشن شادمان، وحدت روڈ، GC یونیورسٹی سمیت متعدد اہم مقامات سے پانی کی نکاسی کر دی گئی۔ لاہور کی تمام شاہراہیں کلیئر، ٹریفک رواں دواں۔ ریسکیو 1122، ستھرا پنجاب اور میونسپل کارپوریشن کی ٹیمیں متحرک۔ چنیوٹ میں بارش سے مکان کی چھت گر گئی، 3 افراد زخمی۔ اٹک میں تیز بارش کے باعث وین برساتی نالے میں بہہ گئی، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اسلام آباد میں گاڑی سمیت آبی ریلے میں بہہ جانے والے باپ بیٹی کی تلاش جاری، سرچ آپریشن کے دوران ریسکیو اہلکار پانی کے تیز بہاؤ میں آگے نکل گیا، تیر کر کنارے پہنچا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ننکانہ صاحب کا دورہ، سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں گئیں، سیلابی ریلے سے بچاؤ کے لیے 2 فلڈ ڈرین بنانے کا اعلان کیا۔ مریم نواز نے ننکانہ صاحب کا بیوٹیفیکیشن پلان 2 ہفتے میں طلب کر لیا، کہا سیلابی ریلوں سے متاثرہ فصلوں اور لائیو سٹاک کے نقصان کا ازالہ کریں گے۔ سیلابی ریلے سے گرنے والے کچے گھروں کے مکینوں کی مالی معاونت کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خواتین سے مسائل پوچھے،
बच्चों में चीजें भी तकसीम की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने और 5 भारतीय जंगी तैयारे गिरने का फिर जिक्र कर दिया। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छिड़ने का खदशा था। पाक भारत जंग में लगातार 5 जंगी तैयारे गिराए गए। दोनों एटमी ताकतों को कहा, अगर जंग जारी रही तो अमेरिका तिजारत नहीं करेगा। दोनों मुल्कों को तिजारत की पेशकश करके जंग रुकवाई। सदर ट्रंप ने 25 बार सीज फायर कराने का दावा किया, लेकिन मोदी ने एक बयान नहीं दिया। मोदी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो फिर जीत कैसी। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को फिर बेनकाब कर दिया। कहा, अमेरिकी सदर ट्रंप ने जंग बंदी कराई, यही हकीकत है। मोदी कब तक हकीकत छुपाएंगे। पाकिस्तान भारत से तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया के किरदार को सराहा। बरतानवी हुकूमत की जानिब से PIA की परवाजों की बहाली के हालिया फैसले का भी खैर मकसद। कहा, मुस्बत पेशरफ्त से पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मुश्किलात दूर करने में मदद मिलेगी। इस साल के आखिर में बरतानिया की क़यादत के साथ मुलाकात के मुंतज़िर है। वज़ीर आज़म ने किंग चार्ल्स और वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जेन मैरियट ने वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी को सराहा। शाह महमूद कुरैशी की बरीयत का ये मतलब नहीं कि वो बाहर आ रहे हैं। अभी 8-9 मुकदमात बाकी हैं। सलमान अकरम राजा कहते हैं, ये कहना काबिल अज़ वक्त है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत संभालेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी से साबिक़ सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, उमर अय्यूब, असद कैसर, हम्माद अजहर और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी। बुशरा बीबी, अलीमा खान, आजम स्वाति भी 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात में शामिल। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई। दुनिया को मालूम है 9 मई PTI ने किया। बानी PTI के घर से इस तहरीक का आगाज हुआ। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, शरपसंदों ने थानों को आग लगाई, सैकड़ों गाड़ियों और इमलाक को जलाया। वीडियोस की बुनियाद पर हमलावरों की शिनाख्त की गई। शवाहिद की बुनियाद पर ही सजाएं दी गई हैं। अज़मा बुखारी कहते हैं, 9 मई की नाकाम बगावत जिन्होंने की और करवाई, उसकी तमाम फुटेजेस मौजूद हैं। 9 मई करने और करवाने वाले दोनों पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। 9 मई का मास्टरमाइंड एहतसाब से बच नहीं सकता। सूबाई हुकूमत की नालायकी हमारी अक्लमंदी है। हमने 10 अरकान पर 2 नशिस्तें जीत ली। 90 अरकान हमारे होते तो कितनी सीटें जीत लेते। हुकूमत ने इज्जत बचा ली। हम 6-7 सीटें जीतने की पोजीशन में थे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबाई हुकूमत दहशतगर्दों के साथ मिली हुई है। सूबा दहशतगर्दों को ठेके पर देकर माल बना रहे हैं। अली अमीन गंडापुर कारकुन के करीब आने पर खफा हो गए। वजीर आला का गार्ड कारकुन को बार बार हटाता रहा। कारकुन के दोबारा करीब आने पर अली अमीन गंडापुर कारकुन से उलझ पड़े। वजीर आला ने कहा, मेरे साथ खड़े हुए और कितना करीब आना है। कारकुन ने बानी PTI का नाम लिया तो वजीर आला को मजीद गुस्सा आ गया। शुगर मिलों की जानिब से अरबों रुपए का कर्ज नेशनल बैंक को वापस न किए जाने का इंकशाफ। ऑडिट हुक्काम ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया, कर्ज सूद की रकम 23 अरब 34 करोड़ रुपए बनती है। मुतादिद शुगर मिल्स ने कर्ज वापस नहीं किया। बैंक हुक्काम ने अब तक कर्ज वसूली के लिए कुछ नहीं किया। सदर नेशनल बैंक ने कहा, शुगर मिल्स को 25 कर्ज दिए, 3 की रीस्ट्रक्चरिंग कर दी, 4 पर काम जारी है। 17 केसेस में रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं। चीनी की बरामद पर सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ने अनोखी मंतक पेश कर दी। कहा, किसानों को नुकसान से बचाने के लिए चीनी बरामद की इजाजत दी गई। खसारे में चलने वाले कौमी इदारों की निजकारी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, इदारों की मरहलावार निजकारी के अहदाफ मार्केट के मुआशी माहौल के मुताबिक मुकर्रर किए जाएं।
قوमी इदारों की बेशकीमत अराजी पर नाजायज कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं। एक और इजलास में वजीर आजम ने कहा, मुल्की आमदन में इजाफा और आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम करना अव्वलीन तरजीह है। FBR इस्लाहात से टैक्स निजाम की बेहतरी को शामिल है। असली तकाजों से हम आहंग निजाम के लिए इकदामात यकीनी बनाए जाएं। कारोबारी अफराद, ताजिरों और टैक्स दहंदगान की सहूलत को मद्देनजर रखा जाए। कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक और व्हाट्सएप ग्रुप की निशानदेही वज़ीर मुमलिकत तलal चौधरी कहते हैं, कलदम TTP इंतहा पसंद और नफरत अंगेज नज़रियात के लिए व्हाट्सएप पैगामात भेजती है। आलमी बरादरी और व्हाट्सएप इंतजामिया से दरख्वास्त है, इस नासूर के खिलाफ ताउन करें। इन अकाउंट्स को बंद करना और नंबर्स को मुअत्तल करना जरूरी है। पहले भी कहा था, फाटा की हैसियत कश्मीर की हैसियत को मुतासिर करेगी। अब हुकूमत कह रही है कि फाटा के इंतजाम का जायजा लेना होगा। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं, हुकूमत कमीशन बनाकर फाटा पर असर-ए-नौ जायजा लेना चाहती है। कोहिस्तान स्कैंडल में 9 मुल्जिमान ने नैब को प्ली बारगेन की दरख्वास्त दे दी। नैब ज़राए का कहना है, मुल्जिमान के मनकूला और गैर मनकूला असासों की छानबीन जारी है। मुल्जिमान के जिम्मे रकम का तयन किया जा रहा है, जिसके बाद दरख्वास्तें चेयरमैन नैब को भेजी जाएंगी। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर होगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा है बांग्लादेश। वजारत दाखिला ढाका आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सिफारती और सरकारी पासपोर्ट्स को वीजा फ्री एंट्री देने की सहूलत देने का फैसला। इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दो तरफा ताउन को फरोग देने के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील दे दी गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा तुर्किया। इस्तांबुल में आलमी दिफाई नुमाइश में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तुर्की आज़रबाईजान के वज़राए दिफा से मुलाकातें। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मुलाकातों में इलाकाई और आलमी अमन में पाक अफवाज के किरदार को सराहा गया। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों और पेशा वराना सलाहियतों का एतराफ़। आला हुक्काम का पाकिस्तान से दिफाई इश्तराक मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। लाहौर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों के बाद इलेक्ट्रिक ट्राम भी चलेगी। चीन से ट्राम मंगवा ली गई। ट्रायल के लिए केनाल रोड पर चलाया जाएगा। 3 बॉक्सेस पर मुश्तमिल ट्राम में 200 से ज्यादा अफराद सफर कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत शाहराह भुट्टो की तौसी से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर आला ने कहा, शाहराह भुट्टो को दिसंबर में खोल दिया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, यूनिवर्सिटी रोड पर बहुत मसाइल आ रहे हैं। K4 की 96 इंच की लाइन आनी है। जब तक वाटर बोर्ड वो लाइन नहीं डालता, हम काम मुकम्मल नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, इसलिए दिसंबर तक कॉरिडोर खोल देंगे। कराची में शौहर के वहशियाना तशद्दुद से नौबिहाता दुल्हन दम तोड़ गई। 19 साला शांति की शादी 16 जून को हुई। शौहर अशोक ने पहले ही दिन बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने लड़की के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को काटा, जिससे शांति की हालत तशवीशनाक हुई। शांति ने सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में जान दे दी। बगदादी पुलिस ने मुलजिम अशोक को गिरफ्तार करके लड़की के भाई की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर की नमाज जनाजा कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ का मियां अजहर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। मरहूम की मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। भारत के अज़ाइम नाकाम। एशियन क्रिकेट काउंसिल का अहम इजलास भारत के तमाम तर मनफी कोशिशों के बावजूद जुमेरात को ढाका में होगा। PCB और ACC के सरबराह मोहसिन नकवी सदारत करेंगे। भारतीय मीडिया का बताना है कि भारत वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग में शिरकत करने पर राजी है। अफगानिस्तान, श्रीलंका और ओमान भी मीटिंग में शरीक होंगे। मीटिंग में एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान मुतवक्के है।
پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرا T20 کل ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا. گرین شرٹس کو کلین سویپ سے بچنے کا چیلنج درپیش. ابتدائی دونوں میچز میں قومی ٹیم کی بیٹنگ لائن مکمل ناکام رہی. پہلے میچ میں 110 رنز بنائے, دوسرے میچ میں 134 رنز کا ہدف حاصل نہ کر سکے. انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے پاکستان کو پرو لیگ میں شرکت کی دعوت دے دی. 12 اگست تک پاکستان اپنی شرکت کی تصدیق کرے گا. نیوزی لینڈ کے پرو لیگ میں شرکت کے انکار کے بعد پاکستان کو دعوت دی گئی. سیکرٹری PHF رانا مجاہد کا کہنا ہے پرو لیگ بڑی اہمیت کے حامل ہے, حکومت سے فنڈز کی بات کریں گے. پاکستان کے احسن رمضان انڈر 21 سنوکر چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے. منامہ میں جاری ایونٹ کے ٹاپ 8 مقابلے میں قومی QS نے بھارتی حریف کو 4-0 سے آؤٹ کلاس کیا. سیمی فائنل میں احسن اور پولش حریف ٹکرائیں گے.